Hey, what's up people? Have you ever heard of cultural chori? Yes, cultural chori. वोट चोरी के बारे में हम सबने सुना है, but have you ever heard of cultural chori? It's a term very less known to people and it's very not discussed upon type of a topic. That's why it's here and we are discussing it today. Creativity के फील्ड में जिस फील्ड में हम हैं, like me and many other people like to take inspiration from each other, right? Someone is taking inspiration from me, I am taking inspiration from someone else, like you people, and then we are making something out of it. Similar wise, कोई design team में होगा, कोई fashion brand है, they take inspirations from each other and that's okay to do it. But what if a big organization or a big fashion brand just copies एक brand या एक complete culture? This is called cultural chori and we will discuss it here in this video where we call it cultural theft versus cultural appreciation. Hello, my name is Rupanji Kumar and I welcome you to Ronessa Solocast. Today I want to keep the video थोड़ा सा ज़्यादा casual because Instagram पे we are doing casual stuff and यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा formal हो रहा है. That's what my team says. So I want to keep it थोड़ा सा casual आज and have a one-on-one discussion with you because this is a topic not very much discussed. That's why we are discussing it here in like underrated Wednesdays. Can we keep it like underrated Wednesdays is दिन का नाम ही, right? Suggest me that in the comment section below and also follow me on Instagram. मतलब मैं plugin डाल देता हूँ. I have divided the whole video into pointers, by the way. Pointers में better समझ में आता है and examples too. So before even getting into the pointers, I feel it's very important to discuss about the core problem and the core idea behind this. What is the difference between cultural appreciation and cultural theft? हम बहुत ही छोटे में समझेंगे and it's very simple to understand. First let's discuss about cultural theft. ठीक है, जो बड़े organizations होते हैं, what do? They just take up from small communities. अब ये जो small communities होती है, इनके अपने cultures होते हैं, इनके अपने designs होते हैं. ये जो बड़े fashion brands हैं, वो उनके designs लेते हैं या उनके अपने traditions की चीज़ें उठाते हैं and they just paste it in their company या इनके brand में. ठीक है, एंड दे कॉल इट लाइक कि मैंने इन जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं इनको रिकग्निशन दिया, बट व्हाट डू? दे जस्ट एक्सप्लॉइट दी स्मॉल कम्युनिटीज़. ठीक है, टेकिंग अप एन एग्जाम्पल, अब जो प्राडा ने रिसेंटली अपना कोलापुरी चप्पल रिलीज़ करा था, ठीक है, दे कॉल इट स्लीपर्स, बट उन्होंने जो कोलापुरी चप्पल रिलीज़ करा था दे कॉस्ट अराउंड 85,000 रुपीज़. उन्होंने आर्टिजन्स को कितना दिया? 250-300 रुपये दिए होंगे प्रॉबली. ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली कोलापुरी चप्पल ऐसे 500-700 रुपये का मिल जाएगा आपको इंडियन मार्केट्स में, बट उन्होंने उसको 85,000 रुपीज़ में बेचा. ठीक है, सो वाई डू दे डू इट फॉर द मनी. क्योंकि इन ब्रांड्स को कोई चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस पैसों से मतलब है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कल्चर का क्या हो रहा है, कल्चर प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा. दे जस्ट वॉन्ट द मनी. वॉट एल्स दे कुड हैव डन? ये जितने भी छोटी कम्युनिटीज़ होती है कोलापुरी चप्पल में, जो कोल्हापुर का सिटी है, उनको अगर ये रिकग्निशन दे देते और इनके जो आर्टिजन्स हैं उनको बहुत ही अच्छा पेमेंट दे देते और वो जो कम्युनिटी है वो उनको अप्रिशिएट कर देती. ठीक है, लाइक द ब्रांड, तो इनके जो सेल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो इंडियन कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे थे एंड दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट जॉब बाय प्राडा इटसेल्फ. बट व्हाट डिड दे डू? दे जस्ट सेंट अ टीम. ये जो कंट्रोवर्सी हुई इसके बाद दे जस्ट सेंट अ टीम और उन टीम ने आके इनका सारी चीज़ें स्क्रूटनी वगैरह करी है एंड एक्सेट्रा एंड दे सेड कि यार हमें पता नहीं था वगैरह चीज़ें, बट ऑब्वियसली वी डू नो दैट दे कॉपीड इट and they made a huge amount of profit out of it. But that's the thing, that's the absolute problem behind everything. ठीक है, now let's move on to a few pointers that I mentioned previously. Now while researching मैंने ये सोचा कि अगर ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पता है तो ये ब्रांड्स को भी पता होगी, बट why do brands pretend not to understand or know about this कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि हमने ये चोरी कर ली है etc. There are 3 reasons to it. And let's discuss it in थोड़ा सा details. ठीक है, the very first and the biggest reason is obviously money. ठीक है, ये जो छोटी communities and the traditional and the cultural छोटी communities, they are like gold mines to these brands. ठीक है, इतने बड़े जो fashion brands हैं, they are like gold mines to them. उनके designs, उनके culture, everything are like gold to them and वो उसको बस extract करना चाहते हैं कैसे भी. This thing what we are discussing about has to be about mutual love. ठीक है, ब्रांड्स को उन कम्युनिटीज़ को अच्छा पैसा देना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए एंड दैट कम्युनिटी इन रिटर्न, क्योंकि वो इन रिटर्न अपना कल्चर और अपना सारी चीज़ें दे रही हैं. ठीक है, तो द ब्रांड शुड ऑल्सो गिव देम समथिंग इन रिटर्न. दैट शुड हैव बिन द थिंग. बट ये ब्रांड्स क्या करते हैं, मैक्स मारा इज़ अ ब्रांड. ठीक है,
बहुत वेरी फेमस ब्रांड इन द एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट ऑफ फैशन, ठीक है. दे जस्ट स्टोल एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन फ्रॉम अ कम्युनिटी कॉल्ड ओमा इन लाओस, ठीक है. उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस कम्युनिटी से एम्ब्रॉयडरी के जो डिज़ाइंस होते हैं वो चुराए. डिज़ाइंस मतलब उनकी कल्चरल कम्युनिटी के डिज़ाइंस होते हैं वो चुराए. एंड व्हाट डिड दे डू, उनको क्रेडिट नहीं दिया. जब ऑनलाइन इनको बैश करा गया तो दे जस्ट सेड कि यार वी रियली अपोलोजाइज फॉर दिस मिसहैप, और ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा वगैरह वगैरह. बट आपने चोरी तो कर ली ना, उसके बाद अब आप अपोलोजाइज करके करोगे क्या. सो द सेकेंड रीज़न इज़ दैट ये जो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि कॉपी करना तो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन है, क्योंकि कौन ही इनको पकड़ पाएगा. और अगर पकड़ भी लिया तो वो माफ़ी मांग लेंगे ऑनलाइन. और इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि ये जो भी छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, दे आर लाइक डिपेंडेंट अपॉन दीज डिज़ाइंस या ये जो क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं. बट आप अगर इनकी चीज़ें उठा लोगे एंड यू जस्ट सेल इट फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है. इन कम्युनिटीज़ को इन रिटर्न क्या मिला, ठीक है. आपने इनको रिकग्निशन नहीं दिया. बाद में अगर आप पकड़े भी गए, अगर आपने इनको रिकग्निशन दे भी दिया, तो इन रिटर्न उनको तो कुछ नहीं मिला. दे आर लाइक पुअर काइंड ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है. छोटी छोटी लाइक कम्युनिटीज़ जो होती हैं, दे आर लाइक पुअर कम्युनिटीज़ एंड दे डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न. सो दीज ब्रांड शुड एटलीस्ट थिंक ऑफ दोज कम्युनिटीज. थोड़ा एथिकली सोचो चीज़ें. इसके अलावा जो अगला रीज़न है इज़ लाइक समथिंग टू बी लिटिल बिट कंसिडर्ड अपॉन, ठीक है. फैशन मूव्स वेरी फास्टर. वी ऑल नो दैट फैशन मूव्स वेरी वेरी फास्टर. एंड जितने भी क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स, ठीक है. अब इनको एक साल में 5 से 10 कलेक्शंस बनाने होते हैं एंड इतना लाइक बनाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. तो व्हाट डू दे थिंक कि हम इन छोटी कम्युनिटीज़ या इन छोटे लाइक ब्रांड्स, इवन ब्रांड्स से चीज़ें उठा लेते हैं. किसको ही पता चलेगा, वी विल जस्ट बी गेटिंग डिसरिस्पेक्ट. बट हमारा कलेक्शन तो बन गया, पैसे तो आ गए ना. दैट इज़ लाइक that has slowly become the mindset of a lot of designers within the industry. Looking into some examples, so Victoria's Secret, a big brand, what did they do? They just used Native American hairdressers as their props, ठीक है. Gucci ने क्या करा, Gucci sold Sikh turbans for like $790, ठीक है. वो जो सिक टर्बन लाइक शायद आपको 200, 300, 500, 1000 रुपये तक में मिल जाएगा. दे आर सेलिंग इट फॉर $790. इट्स समवेयर अराउंड लाइक 70,000 रुपये के आसपास का प्राइस करेगा, ठीक है, लाइक द सिक टर्बन. What do these actions do? These actions turn deeply cultural, meaningful symbols into fashion के बहुत ही बेकार props, and like that's very very bad for a culture or for a community. So small कि उनको कोई recognition ऐसे ही नहीं मिल रहा. And when these brands take from these small communities and don't give them recognition, तो वो तो और भी ख़राब चीज़ है, right? Now let's look into the next point. Now there is an ethical roadmap for all the brands, the big brands as well as the small brands and the individuals who are trying to make a brand out there, particularly in the field of fashion. आपके लिए एक ethical roadmap है, ठीक है. There are multiple brands particularly जिन्होंने बहुत ज़्यादा recognition दिया है to multiple different communities and artisans. इसकी वजह से लोगों ने उनको इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा appreciate करा. इंटरनेट पे भी नहीं, in real life as well, people have appreciated them a lot, ठीक है. ब्रांड्स लाइक डियोर हैज़ वर्क विद कुछ मोरोकन आर्टिजन्स और उनको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया था, ठीक है. इसके अलावा नाइकी कॉन्स्टेंटली गिव्स अप्रिशिएशन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड एवरीथिंग, जिनके साथ भी वो काम करते हैं, राइट. इसके अलावा सब्यसाची वर्क विद अ ब्रांड कॉल्ड क्राफ्ट्समार्क एंड दे प्रमोटेड ब्लॉक प्रिंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है. दैट वॉज अ गुड अप्रिसिएशन फॉर अ स्मॉलर ब्रांड लाइक क्राफ्ट्समार्क एंड ब्लॉक प्रिंट पूरे दुनिया में प्रमोट हुआ. सो दैट वाज अ गुड थिंग टू डू, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एथिकल रोड मैप. जो ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे छोटे ब्रांड्स हैं या फिर जो ब्रांड बना रहा है एक इंडिविजुअल, उसे फॉलो करना चाहिए टू लाइक डू कल्चरल अप्रिसिएशन वेरी पर्टिकुलरली और बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट बीइंग कि आपको किसी भी कम्युनिटी के साथ जिनके साथ काम करना है, उनके साथ बहुत ही स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा. यू कांट लाइक जस्ट इन बिटवीन से कि वी टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एंड लाइक क्योंकि पीपल हैव बैश्ड यू ऑन द इंटरनेट एंड नाउ यू आर लाइक सॉरी. ये नहीं करना, ठीक है. ये नहीं करना आपको. लाइक स्टार्ट वर्किंग विद देम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्ट, और उनको प्रॉपर प्राइस पे करना है. जो भी कम्युनिटी के साथ आप काम कर रहे हो, जस्ट पे देम अ गुड प्राइस. जो भी आप चीज़ें बनवा रहे हो, आपको पता है कि आप वो कितने में बेचोगे, तो उसका कितना कट आप दे सकते हो टू द कम्युनिटी. प्लीज़ डू दैट. प्लीज़ give them utmost respect while working with them such that the next time they
want to work with someone else, they would be very happy to do that, right? The third pointer is giving them good credits. ठीक है, क्रेडिट्स देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी कल्चर अगर आपको दी है या अपनी आर्टिजन्स का काम आपको दिया है, तो आपका ये काम है कि आप उनको प्रॉपर क्रेडिट दो, ताकि वो लाइक उनका जो वो है, उनकी जो कल्चर है वो बाहर भी जाके प्रमोट हो। ठीक है, अगर आप उनको क्रेडिट्स नहीं दोगे तो वो प्रमोट कैसे होगा। द फोर्थ पॉइंट बीइंग कि कुछ कम्युनिटीज़ होती है जिनके कुछ सेक्रेड और कुछ होली चीज़ें होती है। ठीक है, डोंट टच देम, डोंट put influence on those things because they are sacred to the community and that might lead for your brand to like just fall off। क्योंकि एक अगर कम्युनिटी को ये चीज़ बुरी लग गई और पूरे इंटरनेट पे वो बात फैल गई, तो इट वुड बी वेरी वेरी बैड फॉर योर कंपनी एंड फॉर योर ब्रांड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज़ अ रोड मैप ऑन हाउ यू कैन लाइक just build your brand and like do cultural appreciation, which this is very important। और अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ काम करते हो, दैट वुड बी वेरी वेरी गुड बिकॉज दैट गिव्स अ मोर इन्फ्लुएंस एंड मोर डेप्थ टू योर ब्रांड एज वेल एज टू द कलेक्शन दैट यू आर ट्राइंग टू मेक, कोई भी कपड़े के पीस एंड क्या कुछ भी। ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट कंज्यूमर्स बिकॉज एज कंज्यूमर्स यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। ठीक है, अगर आप स्मार्ट नहीं रहोगे तो आपको कोई भी चूना लगा के चला जाएगा एंड यू विल बी जस्ट लुकिंग टू दैट ब्रांड और पर्सन। ठीक है, जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ें लेने जाओ अगली बार, ठीक है, जो आपको लगे कि नहीं ये इस प्राइस पॉइंट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इससे ज़्यादा इसका प्राइस होना नहीं चाहिए, जस्ट थिंक ऑफ 2 क्वेश्चंस, जस्ट आस्क 2 क्वेश्चंस इन योर माइंड। जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में ये 2 क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि डिड द ब्रांड जो भी वो पैसे ले रहा है उसकी स्टोरी लाइन ठीक है। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका कोई एक स्टोरी होगा या उन्होंने वो किसी चीज़ से एक इंस्पिरेशन ली होगी। ठीक है, वो इंस्पिरेशन शायद एक कम्युनिटी से हो और क्या उन्होंने जो आर्टिजन्स उस चीज़ को बनाने में लगाए हैं उनको सही पे करा है बेस्ड ऑन द प्राइस दैट दे हैव लाइक आस्क्ड यू टू पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई नो ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं था, बट आप में से जितने लोगों ने ये वीडियो देखी, आई डेफिनेटली नो दैट यू लाइक द वीडियो। Still, please drop a comment in the comment section below. Subscribe to the channel, follow me on Instagram. और आप में से जितने लोग भी ये वीडियोस देखते हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट बिकॉज आई रियली लाइक पीपल सेइंग यार भैया आपकी वीडियो अच्छी लगी, यार रूपांजय आई डिड लाइक योर वीडियो, वगैरह वगैरह लोग कॉल करके बताते रहते हैं। तो इवन 50 पीपल वॉचिंग द वीडियो मेक्स मी वेरी हैप्पी। ठीक है, आई नो कि हम एक दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्क हिट करेंगे। आज दिवाली है, इसलिए शायद आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से पटाखे फूटने की। प्लीज़ एन्जॉय दिस टाइम ऑफ द ईयर एज वेल, क्योंकि हर साल बहुत ही एक्साइटिंग होता है। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे विद फैशन वीक का न्यूज़, फैशन वीक मतलब वीकली फैशन न्यूज़, सॉरी, एंड दैट वुड बी ग्रेट टू। वो वीडियो ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज दिस वीक वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रेट न्यूज़। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।